उनकी सवाने के मौलिफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी रहे हैं। हाली ने अपनी शाहकार नज्म चुप की दाद औरत को मानून करते हुए लिखा था, अफसोस दुनिया में बहुत तुम पर हुए जोर जफा, हक तलफियां तुमने सही बेमहरियां झेली सदा। This later became a masterpiece in early feminist literature, but one couple with a dream for the daughters changed it all. For an account of women in AMU at 100, I request Professor Naima Khatoon Gulreis, Principal Women's College, AMU. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Minister of State for Education, Shri Sanjay Dhotre ji, respected Chancellor, Pro-Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Treasurer, Registrar, distinguished guests, students and staff. The momentous and proud occasion of the centenary celebration makes it clear Aligarh Muslim University is not just any other university. It is the name of a movement and a mission to spread the light of knowledge, scientific temperament, tolerance, inclusiveness, and dispel the darkness of ignorance and narrow-mindedness. A seminal contribution of the Aligarh movement to the collective India, it is in its insistence on women empowerment. It made female education a reality at a time when it was considered a taboo, as women's segregation is taken as a much revered moral virtue. Parda was more important than their education and personality development. The Aligarh movement had conflicting voices regarding women's education, and initial bottlenecks prompted Gail Minault and few others to conclude that the founder had shown a degree of inconsistency while addressing the issue of women education and rights. However, the Aligarh movement in its entirety did not falter on this count, as many companions of Sir Sayyid relentlessly espoused the cause of female education. The reformist movement of Aligarh, with its focus on women's education, had started to pick up momentum since the end of the 19th century and became more assertive in its demand for availability of formal education and institution with the advent of the 20th century. Ghulam Saqlain, Karamat Hussain, Mumtaz Ali, Shaukat Ali, and Sheikh Abdullah were among the most active leaders for the cause. Sheikh Abdullah subsequently became the Secretary of Women's Education Section in 1902. He, along with his wife, Wahid Jahan Begum, established a madrasa or school for girls, which is the citadel of women education and now known as the AMU Women's College. It started with the foundation of a female madrasa in the year 1904. The wife of the then Lieutenant Governor of UP, Mrs. Potter, laid the foundation stone of a boarding house for girls' education in its premises. Sheikh Abdullah later founded the Female Education Association and started Risala-e-Khatun to promote the cause of female education. Within a few decades, Aligarh produced poets which would address women not as beloved but as the purveyor of nationalism who symbolized female emancipation. Asrarul Haq Majaz wrote, "Tere mathe pe ye aanchal bahut ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था." A very important name for the cause of female education is Begum Sultan Jahan, who was deeply involved in the development of Mohammedan Anglo-Oriental College. In 1914, she became the president of the All India Muslim Ladies Association and laid the foundation stone of the Sultania Hostel in Girls High School. Begum Sultan Jahan later became the founding chancellor of Aligarh Muslim University from the year 1920 until her death in the year 1930. In the year 1937, Women's College was established and now more than 3,000 female students are enrolled here. The students are not only from India but also from Malaysia, Thailand, Iran, Bangladesh, Mauritius, Indonesia, Turkmenistan, Nepal and Afghanistan, who are enrolled in its 34 courses in 6 faculties, availing the facilities of smart classrooms, having Wi-Fi facility, modern laboratories, library, and modern facilities for co-curricular and extracurricular activities. The premises offers a variety of experience to the enrolled girls. The university also imparts technical and vocational education and has a women's polytechnic and a center for skill development and career planning. It also has an advanced center for women's studies. AMU has contributed to female education in a massive way in the past. However, it does not and should not make us complacent. Hence, we need to invest more material, infrastructural, and human resources into the cause of female education and make the environment conducive for their growth so that the talents of women who comprise almost half of our population do not go waste, but they are rather put to the good use of national development.
And I strongly believe that in future too, our students will scale greater heights in science and technology, as well as humanities, to make the university and the nation proud. Thank you. थैंक यू प्रोफेसर नईमा। ख़वातीनो हज़रात, वो अजीम हस्ती जो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे पर फायज है, मुल्क गिर ही नहीं बल्कि आलमगीर रूहानी रहनुमा की हैसियत रखती है। हिज होलीनेस आली कद्र डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने 2018 में दूसरी मर्तबा हमारा चांसलर बनना कबूल फरमाया और आज 100 साला जश्न की तकरीबात में उनकी ऑनलाइन शिरकत हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है। अवामुन्नास में आली कद्र के एहतराम का ये बुलंद दर्जा है कि मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जो अब से कुछ ही देर में हमसे खिताब करने वाले हैं, जब सूबे के वजीर आला के हमरा उनकी अशरे मुबारक की रूहानी मजलिस में नंगे पांव शामिल होते हैं तो एहतरामन दस्तबस्ता होते हैं और दिल अकीदत से लबरेज होता है। आपके दादा जान सैयदना ताहिर सैफुद्दीन और वालिद मोहतरम सैयदना बुरहानुद्दीन भी इस जामिया के चांसलर रह चुके हैं और ये इजाज किसी दूसरे खानदान और कौम को नहीं हासिल है। 53वें दाई अल मुतलक दाऊदी बोहरा मुस्लिम कौम हिज होलीनेस आली कद्र सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से दरखास्त है कि 100 साला जश्न के इस मौके पर अपने पुरमग़ज़ खिताब से नवाजें। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही अस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब, प्रो चांसलर नवाब इब्न सईद खान ऑफ छतारी, वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, प्रोफेसर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब, मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे निहायत मसर्रत है कि मैं आज एक बार फिर इस खुशनुमा बज़्म में आप हज़रात से मुखातिब हूँ। दुनिया भर में अपनी इल्मी खिदमात के लिए मशहूर इस दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब में आज नामी गिरामी शख्सियात मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से सभी मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी ने वतन अजीज हिंदुस्तान की खिदमत में एक सदी 100 साल मुकम्मल की है और इसके तलबा, असातिज़ा और मुंतज़िमीन अपनी मेहनत से इल्म व फ़न के मुख्तलिफ मैदानों में हिंदुस्तान के परचम को सर बुलंद किया है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज ये बात भी हम सब के लिए बाइस मसर्रत है कि हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब यूनिवर्सिटी की इस 100 साला तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं। मैं नज़द रब दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला वतन और इंसानियत की खिदमत के लिए उन्हें क़ुव्वत अता फरमाए और सेहत व सलामती की नेमतों से नवाजे और वतन अजीज हिंदुस्तान तरक्की की राह पर हमेशा आगे बढ़ता रहे। मुल्क में और तमाम आलम में अमन व अमान कायम रहे, खुशहाली आम हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, दीन इस्लाम में तालीम को इबादत करार दिया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है
कि अर्बातुन तलज़मु कुल्ल ज़ी हिजन व अक़लिन मिन उम्मती क़ील या रसूलल्लाह मा हिया क़ाल इस्तिमाउल इल्म व हिफ्ज़ुहु वल अमलु बिही व नशरुहु। यानी 4 चीजें मेरी उम्मत के हर ज़हीन और अक्लमंद इंसान पर लाजिम है। आपसे पूछा गया कि ए रसूल खुदा वो चीजें क्या है? आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि पहली चीज ये कि हर इल्म को गौर से सुना, और दूसरी चीज ये कि जो इल्म हासिल किया है उसे हमेशा याद रख, और ये इल्म कब याद रहता है और कब इसका फायदा होता है कि जब उसके मुताबिक अमल किया जाए। तो तीसरी चीज ये कि इल्म के मुताबिक हमेशा अमल करते रहना, और चौथी चीज ये कि जो इल्म हासिल किया है उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना। हादिरीन किराम, दीन इस्लाम में तालीम का असल मकसद यही है कि उसके मुताबिक अमल करके कौमी और आलमी मुश्किलों को हल करने के लिए इख्तिराई रास्तों को तलाश किया जाए और सोसाइटीज को फायदा पहुंचाया जाए। वो तालीम ही नहीं है जिस तालीम के मुताबिक अमल न हो और उसका फायदा किसी को हासिल ना हो। जाहिर है कि इंसानियत की बेहबूदी के लिए कोशिशें करना अरबाब इल्म पर वाजिब है। इल्म और अमल से हर मुश्किल का हल निकल आता है। इल्म इंसानों के फासलों को कम कर देता है और दिलों को जोड़ देता है। आज इस आलमी वबा कोविड की दुश्वारियों से निजात पाने के लिए तमाम आलम की उम्मीदों अहले इल्म से ही वाबस्ता है। इस मुश्किल दौर में हम देखते हैं कि बनी नौ इंसान को तिब्बी, माशी, मुआशरती, सोशल और इसके अलावा हर शोबे में सबात व करार के लिए आपसी ताउन और बाहमी इत्तिहाद की बेहद जरूरत है, और ये ताउन और इत्तिहाद को पैदा करने की जिम्मेदारी तालीमी और हुकूमती इदारों के कंधों पर रहती है, और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू के बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ और बारगाह इलाही करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस आलमगीर वबा कोविड की बला से बेहक़ इमाम हुसैन सलवातुल्लाह अलैह तमाम इंसानों को आज़ाद करे, रिज़्क़ में कुशादगी अता करे। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और मुख्तलिफ तबके के लोगों जिन्होंने इस मुश्किल हालात में इबादुल्लाह की मदद की है, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो लोग वैक्सीनेशन मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कामयाब करे। अल्लाह ताला इल्म अदब के इस खूबसूरत चमन को अपनी अल्ताफ से सरसब्ज़ व शादाब रखें। उसके तलबा, असातिज़ा और मुंतज़िमीन को अपनी इल्मी और फन्नी सलाहियतों से वतन और इंसानियत की खिदमत करने की नेक तौफीक अता फरमाए। इन्नहु समीउ दुआ करीबुन मुजीब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम, आपके इस खिताब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया और आपकी हर दुआ पे आमीन। देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि पूर्व में भी माननीय शिक्षा मंत्री का स्नेह और आशीष हमें प्राप्त रहा है। In the past few months, he has been with us twice online, once to inaugurate our medical college's exam center and then to address us as chief guest in our seminar on NEP and release a book on quantum physics. Today, he is here with us again, और उनसे उनके उद्बोधन के निवेदन के लिए और उनके स्वागत के लिए मेरा निवेदन AMU के कुलपति श्री तारिक मंसूर से है कि वे मिनिस्टर साहब का स्वागत करें। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से और अपनी ओर से अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
और उनका दिल से आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इसकी शोभा बढ़ाई। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का भारत के इतिहास में 2 रीजंस की वजह से हमेशा नाम लिखा जाएगा। एक वजह यह है कि इन्होंने जो ऐतिहासिक शिक्षा नीति दी है, ये शिक्षा नीति, इसकी खूबसूरती ये है कि ये कंसेंसस और कंसल्टेशन के बेस्ड है। इसी वजह से जितने हमारे राज्य हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने शिक्षा नीति को बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट कर लिया है और ये काम बहुत मुश्किल था। इसलिए हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसमें जो है अलग अलग तरह के विचार आते हैं, अलग अलग तरह की सोच होती है लोगों की, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके दिखाया। दूसरी वजह जो होगी जिसमें इनका शिक्षा के इतिहास में इनका नाम हमेशा याद किया जाएगा, वो जो शिक्षा मंत्री ने नेतृत्व दिया है कोविड-19 पैंडेमिक में पूरी एएमयू फ्रेटर्निटी की तरफ से। और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना एड्रेस दें। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे सहयोगी मंत्री केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जी, जो दूसरी बार ये उन्होंने हमको गौरव प्रदान किया है, प्रो कुलाधिपति नवाब इब्ने सईद खान जी, विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर जी, प्रोवीसी प्रोफेसर जहीरुद्दीन जी, महिला कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमा जी, और रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद जी, प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी जी, निदेशक सर सैयद अकादमी, उच्चतर शिक्षा के भारत सरकार में सचिव श्री अमित खरे, सभी कार्य परिषद के सदस्यगण, सभी अधिकारी वर्ग, सभी डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय, सभी कर्मचारी, शिक्षक वर्ग और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य भाई और बहनों, और जो देश और विदेश में पूर्व छात्र जुड़े हुए हैं, वर्तमान में छात्र जुड़े हुए हैं, उनके अभिभावक जुड़े हैं, मैं इस अवसर पर, जबकि हम आज एक उल्लास और उत्सव के अवसर पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में अपने विश्वविद्यालय का 100 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सर सैयद अहमद खान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने 133 वर्ष पूर्व जो सपना देखा, आज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो सपना साकार हो चुका है। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक है। 1964 के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं। यह विश्वविद्यालय की स्थापना के 100वीं वर्षगांठ पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। एएमयू के 100 वर्ष के इतिहास में अनेकों ऐतिहासिक पड़ाव आए, जिन्होंने देश को नई दिशा दी। शैक्षणिक संस्थान के रूप में एएमयू राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सदैव ही अग्रणी रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित किया है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, 2 भारत रत्न
डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान, 8 पद्म विभूषण, 28 पद्म भूषण, 37 पद्मश्री तथा भारत और विदेशों के 90 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे पदों पर सम्मान मिला है इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्रों को। प्रशासनिक क्षेत्र में भी तमाम एक लंबी श्रृंखला है और औद्योगिक क्षेत्र के में भी जाने वाले देश और विदेश में एक लंबी श्रृंखला है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिकों को भी तैयार किया है, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के 38 फेलो भी शामिल हैं और यह दुनिया का शायद पहला एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो 1920 में एक महिला बेगम सुल्तान जहां संस्थापक चांसलर के नेतृत्व में जो एक महिला महाविद्यालय अस्तित्व में आया होगा, जिसकी निदेशक ने अभी उसके बारे में अवगत कराया है। शायद ये दुनिया का पहला ऐसा अद्भुत उदाहरण होगा। ये हमारी महिलाओं के प्रति, इस देश की महिलाओं के प्रति सम्मान को सर्वोच्च शिखर पर प्रदर्शित करता है। 1877 में सर सैयद अहमद खान ने देश में आधुनिक शिक्षा के विकल्प तैयार करने की जो नींव रखी, जिसे 1920 में विस्तार मिला और आज 2020 में 100 वर्ष के स्वर्णिम अनुभवों के उपरांत यह संस्थान गर्व और गरिमा के साथ अग्रिम पंक्ति में स्थापित हो चुका है। एएमयू की स्थापना जिस व्यापक सोच के साथ की गई थी, उसके 2 मुख्य केंद्र विशेष करके थे। नंबर 1 पुरातन एवं आधुनिकता का समन्वय और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व और पश्चिम के बीच जो श्रेष्ठ है उसको वरीयता देना और अतीत की भ्रांतियों को दूर करना। जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सर सैयद अहमद शैक्षणिक धरातल पर लाने की वकालत करते रहे, आज वह न केवल संविधान में संवैधानिक कर्तव्यों का हिस्सा है, अपितु हमारे शैक्षणिक आदर्श के रूप में भी स्थापित हो चुका है। 100 वर्ष का समय कम नहीं होता। अनेक उतार और चढ़ाव इसके जीवन में आए होंगे। ऐसे अभीष्ट संस्थान भी अनेकों चुनौतियों और संघर्ष का साक्षी है। एएमयू की 100 वर्षों की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें तमाम पड़ाव आए होंगे, जिसे हम सभी अद्भुत शैक्षणिक सफलता के रूप में आज स्वीकार कर रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्राथमिकताएं होती जो कभी बदलती नहीं है। दिसंबर 1964 में एएमयू के दीक्षांत समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने युवाओं के नाम उद्बोधन में हमें एक ऐसा मंत्र दिया जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शास्त्री जी ने कहा था, देश के प्रति वफादारी अन्य सभी प्रकार की वफादारियों से ऊपर होती है। यह एक पूर्ण निष्ठा है जिसकी तुलना किसी से अन्य से की नहीं जा सकती है। अगर इस भाव को मैं पूरे शब्दों में समाहित करूं तो जो वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जेएनयू कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में जो कहा था उसका मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नेशन फर्स्ट अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि है। सभी विचारधाराएं, व्यक्तित्व राष्ट्रीय धारा में समाहित हो जाते हैं। यह एक ऐसा पैमाना है जो हम अपने जीवन में ढाल लें तो कभी भी गतिरोध और किम कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी। नेशन फर्स्ट के साथ अगर हम कहें कि नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, हमारा एक ही कैरेक्टर हो जिसके केंद्र में इंडिया फर्स्ट हो, जिसमें भारत भी और भारतीयता भी हो। आज पूरे विश्व ने भारत और भारतीयता की ताकत को स्वीकार किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरा विश्व सम्मान और आदर्श की दृष्टि से देखता है। नई शिक्षा नीति भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन का मूर्त रूप है। जैसे अभी हमारे यशस्वी हमारे कुलपति जी ने कहा नई शिक्षा नीति के बारे में, ये जो नई शिक्षा नीति की नींव है ये भारतीयता पर आधारित है और उसका विस्तार वो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। मैं समझता हूं कि जो इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी की जो आधारशिला है वो निश्चित एक और सशक्त, शिक्षित और जीवन मूल्यों को प्रेरित समाज का निर्माण करेगी, तो वहीं देश को समृद्ध भी बनाएगी। मानव प्रकृति हमेशा प्रगतिवादी और सुधारवादी होती है, यानी सुधार यानी रिफॉर्म
जीवन का सार। अगर हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे देश का भविष्य को ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे। आज हमारे पास मजबूत लीडरशिप है, विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति है। हमें रिफॉर्म भी करना है, परफॉर्म भी करना है और ट्रांसफॉर्म भी करना है। इसी सोच और विस्तार को हमने नई शिक्षा नीति में समाहित किया है। 21वीं सदी के नए भारत का ये विजन डॉक्यूमेंट है। मैं ये समझता हूं कि भारत जो विश्वगुरु था है और वो भारत विश्वगुरु रहेगा। ये भारत ज्ञान की महाशक्ति बनेगा। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग हम सब सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस परिदृश्य में शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी और भी दुगना हो जाती है। जो संस्थान चुनौतियों का सामना एकता और सामूहिकता के साथ करते हैं, वही विजयश्री को भी प्राप्त करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अपने सामाजिक और शैक्षणिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरे समर्पण के साथ किया। चाहे एमओयू स्टाफ के द्वारा कोविड काल में पीएम केयर फंड में 1.4 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का योगदान हो, या 2 लाख से भी ज्यादा कोविड का परीक्षण हो। कोविड परीक्षण के लिए हजारों स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन एएमयू के राष्ट्रीय चरित्र को साबित करता है। ये मात्र कुछ उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि संस्थान ने अपने योगदान से अपनी योग्यता और विश्वसनीयता में लगातार मूल्यवर्धन किया है। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की त्रिवेणी भी इसी संस्था की श्रेष्ठता का मानदंड होती है। एएमयू ने तीनों क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्च अक्षुण्णता बनाए रखा है। इसके लिए पूरी एएमयू परिवार को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। जो अभी तमाम विवरण विश्वविद्यालय के बारे में आया है। हर संस्थान की अपनी एक संस्कृति होती है, परंपरा होती है, सामाजिक मूल्य होते हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस एक प्रतीक है विविधता का, और जहां हमें छाप मिलती है मिनी इंडिया की। आभास होता है आधुनिकता के पारंपरिक जीवन शैली के अनोखे संगम का। ऐसी खूबसूरती देश के चंद गिने चुने संस्थानों में ही संरक्षित है। उनमें भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान है। मैं कहना चाहता हूं 1000 विश्वविद्यालय इस देश के अंदर, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक अध्यापक हैं, और यदि छात्रों की संख्या देखें तो अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके सानिध्य में शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है, और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहल श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है। संवाद, सहभागिता और सहयोग की प्रवृत्ति से हर विचार को नई ऊंचाई मिलती है। इसी व्यापक सोच का विस्तार करते हुए हमारे कैंपस में रचनात्मक आशावादिता, संवेदनशीलता को और सुदृढ़ता मिलेगी। इसे न केवल हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, बल्कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में भी हम निश्चित रूप में अग्रसर होंगे। पेड़ के नीचे 7 छात्रों से शुरू हुआ यह महाअभियान आज 38,000 छात्रों के साथ एक व्यापक स्वरूप हासिल कर चुका है। देश के चारों कोनों में विश्वविद्यालय के कैंपस महत्वपूर्ण शिक्षा का पर्याय बना हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी यही देखने को मिलती है। वहीं आत्मनिर्भर भारत की प्रयोगशाला की छवि भी इस विश्वविद्यालय के कैंपस में मुझे दिखाई पड़ती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञान की रोशनी इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो जलती है, वो नए भारत, जो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत जो सशक्त होगा, सुंदर होगा, आत्मनिर्भर होगा, श्रेष्ठ होगा, जो भारत पूरी दुनिया के लिए एक अभिनव होगा, उस भारत की निश्चित रूप में स्थापना की दिशा में ये नींव का पत्थर साबित होगा। मैं आपकी कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं, विश्वविद्यालय की तराना की कुछ पंक्तियां, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारा जहां पे बरसेगा, हर जू ये रवा पर बरसेगा, हर कोह ये गिरा पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। अब ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो 4 पंक्तियों के साथ जो उन्होंने ए वतन तेरे लिए मेरी एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए वो गुनगुनाया था कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर संवेदना खोई नहीं है, क्या है बलिदान जीवन निर्बलता ढोई नहीं है,
कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। आप सबको मेरा अभिवादन। और प्रधानमंत्री जी को जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने जो लीजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया है, मैं देश के पूरे शिक्षा परिवार की ओर से उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has joined us, and I request Vice Chancellor Aligarh Muslim University, Professor Tariq Mansoor, to extend him a warm welcome. In the history of our university. On this historic event, thousands of alumni like me feel an overwhelming sense of pride and love for our founder, Sir Syed Ahmad Khan, a true patriot of the soil. The guiding principle of Sir Syed's life is described in one of his famous quotes. The first requisite for the progress of a nation is the brotherhood and unity among all sections of the society, unquote. A champion of Hindu-Muslim unity, he practically demonstrated how to achieve communal harmony and brotherhood among people of all faiths. The doors of this great institution have since always been open to people of all religions, castes and creeds. AMU, a unique symbol of India's composite culture, is committed to the development of interfaith understanding among all the religions of the world. For this, we have established the Dara Shikoh Center for Interfaith Understanding and Dialogue. For centuries, despite many diversities, we are living as a people in unity and oneness. That is what makes our Bharat unique. This is the message from this ancient land, Bharat, to the entire world. Our alumni residing in India and abroad have a deep bonding and love for their alma mater and play a significant role in the development and profile of the university. The university has produced countless distinguished scholars in various fields who have made a mark in the country and abroad. Besides being a great seat of learning in traditional fields, AMU today is also at the forefront in imparting modern and scientific education. AMU has contributed immensely in the country's struggle for independence and nation building throughout its history. This institution has changed the lives and destinies of innumerable families, majority of who belong to the economically weaker sections of the society. Today, as per official figures, the Muslims are at the lowest rung of the educational and socio-economic ladder. It needs the support of the Government of India and various other agencies for its upliftment. AMU offers unstinted support in achieving this goal in accordance with Section 52C of the AMU Act. AMU is also at the forefront in the struggle to achieve women's empowerment through education. For this, in the centenary year, we have submitted a proposal for establishing an Institute of Professional Women's Studies to the government for consideration. Honorable Sir, we look forward to your consideration for this proposal and other projects submitted. Your good wishes and support will go a long way in achieving objectives and solving other problems and issues facing the community today. Your presence today has ignited positivity and hope among all of us. It has ignited positivity and hope among all of us. We wish the university and our country will attain new heights of glory and achievement under your able guidance and leadership. AMU, an institution of national importance, needs continued support to maintain its historical, spatial, and constitutional character for the good of the nation. I take the opportunity of inviting you to visit our beloved institution physically whenever it is possible. Our campus is one of the best in the world, and it will be a pleasure to host you. आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चमन सिर्फ डिग्री ही नहीं देता, बल्कि मोहब्बत, तहजीब, भाईचारा और देशभक्ति
देता है। थैंक यू। जय हिंद। I request the Honorable Prime Minister to release the postal stamp issued by the Department of Post and Telegraph on Aligarh Muslim University on the occasion of the centenary. I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly deliver his address. नमस्कार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय धोत्रे जी, वाइस चांसलर भाई तारिक मंसूर जी, सभी प्रोफेसर्स, स्टाफ, इस कार्यक्रम में जुड़े एएमयू के हजारों छात्र छात्राएं, एएमयू के लाखों एलुमनाई, अन्य महानुभाव और साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का मौका दिया है। मैं तस्वीरों में देख रहा था सेंचुरी गेट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन, तमाम विभागों की बिल्डिंग्स को खूबसूरती से सजाया गया है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, इनके साथ शिक्षा का जो इतिहास जुड़ा है वो भारत की अमूल्य धरोहर है। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीग्स, यही कहते हैं ना आप लोग, पार्टनर्स। आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है, एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर
सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। साथियों, बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की यह भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाएं। क्योंकि एएमयू में जो भी बातें वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर वो राष्ट्र के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोड़ेंगे। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। आपको एक तरफ
अपनी यूनिवर्सिटी की सॉफ्ट पावर को और निखारना है और दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दायित्व को निरंतर पूरा करना है। मुझे विश्वास है एएमयू से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र छात्रा अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेगा। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। साथियों, अपनी इस बात को विस्तार देते हुए सर सैयद ने एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। साथियों, आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। आज देश गरीबों के लिए जो योजनाएं बना रहा है, जो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही है, बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, बिना किसी भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए, बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया, बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एक एलुमनाई से हुई थी। वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने तो इसका लाभ सभी को हुआ। ये शौचालय भी बिना भेदभाव ही बने थे, लेकिन एक उसका एस्पेक्ट ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है और न ही एकेडमिक वर्ल्ड का इस पर उतना ध्यान गया है। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हर स्टूडेंट इस पर गौर करे। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में
मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। आज भी एएमयू के पास ये गौरव है कि इसकी फाउंडर चांसलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। 100 साल पहले की परिस्थितियों में ये किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। आधुनिक मुस्लिम समाज के निर्माण का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बढ़ाया है। साथियों, पहले ये कहा जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविष्य खुद तय कर सके। एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ लेकर आते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में होता है एम्पावरमेंट। एक एम्पावर्ड विमेन का हर स्तर पर, हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का। फिर चाहे बात परिवार को डायरेक्शन देने की हो या फिर देश को डायरेक्शन देने की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की अन्य शिक्षा संस्थाओं से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा में जोड़ें और उन्हें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन तक लेकर के जाएं। साथियों, एएमयू ने हायर एजुकेशन में अपने कंटेम्पररी करिकुलम में उससे बहुतों को आकर्षित किया है। आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर डिसिप्लिनरी विषय पहले से पढ़ाए जाते हैं।
अगर कोई छात्र साइंस में अच्छा है और उसे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है, तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके। यही भावना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नए नए स्टार्टअप्स के जरिए देश की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है। रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक आउटलुक उनकी पहली प्रायोरिटी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के युवाओं की इसी एस्पिरेशंस को प्राथमिकता दी गई है। हमारी कोशिश ये भी है कि भारत का एजुकेशन इकोसिस्टम दुनिया के आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक बने। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था है, उससे स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा के बारे में फैसले लेने में आसानी हो गई है। हर एग्जिट ऑप्शन के बाद उन्हें एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स की फीस की चिंता किए बिना अपना फैसला लेने की आजादी होगी। साथियों, सरकार हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ाने और सीटें बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 IITs थी, 16। आज 23 IITs है, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल IITs थी, 9 ट्रिपल IITs थी। आज 25 ट्रिपल IITs हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहां 13 IIMs थे, आज 20 IIMs हैं। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत काम किया गया है। 6 साल पहले तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे, आज देश में 22 एम्स हैं। शिक्षा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी तक पहुंचे, बराबरी से पहुंचे, सभी का जीवन बदले, हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, AMU के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। क्यों ना 100 साल के इस मौके पर AMU के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। जैसे AMU के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है, क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए, जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इन महापुरुषों के जन्मस्थान जाए, उनकी कर्मभूमि जाए, उनके परिवार के लोग अब कहां हैं उनसे संपर्क करें। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सप्लोर करें। उदाहरण के तौर पर 75 हॉस्टल्स एक एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक और काम है जो देश के लिए AMU के छात्र छात्राएं कर सकते हैं। AMU के पास देश की इतनी बेशकीमती प्राचीन पांडुलिपियां है। ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मैं चाहूंगा
कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें डिजिटल, इन्हें वर्चुअल अवतार में पूरी दुनिया के सामने लाएं। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। जिस सदी को भारत की सदी बताया जा रहा है, उस लक्ष्य की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ता है, इसे लेकर पूरी दुनिया में क्यूरियोसिटी है। इसलिए आज हम सभी का एकमात्र और एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। जब इसको लेकर एक मजबूत नींव पड़ेगी तो लक्ष्य तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन मुद्दों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले हैं, इस मिट्टी से निकले हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपनी पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक परवरिश थी, अपने अपने विचार थे, लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष्य के साथ ही जुड़ गए। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो आजादी के लिए किया, वही काम अब आपको, युवा पीढ़ी को नए भारत के निर्माण के लिए करना है। जैसे आजादी एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा, तो लाभ भी सभी 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। ये विमर्श समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, ये काम आप कर सकते हैं, युवा साथी कर सकते हैं। साथियों, हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है, उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है।
ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियों, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हाँ, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। साथियों, पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्ग का हो, वो इंतजार नहीं कर सकता। आज उनका भी पुण्य स्मरण करता हूं, उन सब का भी आदर करता हूं और फिर एक बार आज के इस पवित्र अवसर से भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व भर में फैले हुए अलुमनाई को भी मैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करता हूं, उनके उत्तम भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं करता हूं और एएमयू के भी उत्तम भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। It is my proud privilege to propose the vote of thanks on the historical occasion to commemorate the centenary celebration of Aligarh Muslim. I sincerely thank Member of University Court, Executive Council, Academic Council, AMU teachers, staff, and student fraternity for joining today's event in vast numbers. Thank you. Thank you very much, Registrar Mr. Abdul Hamid Saab, for moving the vote of thanks. Ladies and gentlemen, the AMU Tarana is not merely a song. It's a worldwide phenomenon, a deluge, a rallying point for our alumni around the world. We have something called Tarane Wali feeling, and it has become a metaphor for unconditional love, allegiance, and reverence for Bani Darsgah Sir Syed Al-Rahma and Madre Ilmi Aligarh Muslim University. इस शानदार महफिल का आगाज हमने एक मजहबी रिवायत से किया था और इख्तिताम हम एक इल्म दोस्ती और हिब्बुल वतनी की रिवायत से करेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय असरारुल हक मजाज की नज्म नजर अलीगढ़ के चंद अशार हमारा दिल पजीर तराना है। Eminent visitors to AMU are moved by the foot tapping and hand clamoring josh in our tarana and have gone on record saying that it's the best song any university can have. तराने के बाद हमारे देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हम सब इसके सम्मान में खड़े होंगे। AMU तराना प्लीज। Ah
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Okay, thank you, dear. Okay, thank you, dear participants. The second session will be started at 11 a.m. Thank you. So you can leave this group. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Please join the next link. जिया सर जी मैम प्लीज। सेकंड सेशन कब है? अभी 11 बजे से। हाँ तो थोड़ा 5 लेट मिनट हो गया, देता थोड़ा लेट हो गया सर सेकंड सेशन कब है? थोड़ा बड़ा है जी। बस थोड़ा सा सेकंड अभी सेशन आप कब है? लोग सेकंड सेशन 5-10 मिनट आप 5 लोग ले मिनट का। लीजिए, चाय वाय पी के आ जाइए, जी। ठीक है? 5-10 मिनट बाद शुरू करिए, ठीक है? ओके, ओके ओके, ओके थैंक्स। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम।
महाराजांकडे कुठं महाराजांनी बोललं तिकडे पाठवलं आहे त्यांना कधी कुणी निरोप दिले चित्त देवापासून काय भेद असं केलं लायब्ररी सायन्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कुठे आहे सर प्राचार्याने बोलवलं होतं तुम्हाला जावा तुम्ही ते वर काय तिकडे नमस्कार नेते कॉलेज 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 काय बोलतो भेटे हे मरणाची गाव काय विनायक सर्व्हिस सेंटर आमच्या घरचे कुठे गाव कुठं बघतो नक्की हा बर दोन वावर तिथे मोठी ह्याची घेतात कोणाची विजेची सर्व्हिसिंग वारायची त्याच्यात त्या वावराच्या वरच काय म्हणते वर वर त्या आंबे बसलं का वड्या म्हणजे तुमच्या नामदेव आपणची वावराच्या खालच्या बाजूची का हा ते वड्या तिथे का बर
कोण गेला होता उस्मानियाने घेतली ना ते गोळ्याच्या उस्मानिया झाला होय तेव्हा होय किती वावर आहे होय कसा दर दिसतो पण त्याला विचारणार म्हणजे आपण कोणाला तयार करू शकतो ना असं काय नसलं आपण हा माहिती पाहिजे दरवा त्यांचा एवढा होय मला म्हणतो पॉलिसी तुला जायला जागा आहे काय ऐकून देणार जागा त्याला दर विचार अंदाजे किती होते मी एक तुम्हाला विचारून बघतो घ्यायला तरी किती कोणता ते विचार किती एकराचा कसं आहे म्हणजे ते पटात जर चालायचे आपल्याकडे असं होते तर रस्ता नाही त्यामुळे सोसायटी वावर आहे नुसतं होय बर होय त्याला शेवट मला किती येणार तेवढं फायदा सांगतो घ्यायला मग तशी मला पार्टीला मला पुढं बोलायला कोण घेणार बघू आपण बोलायचं
Yeah, right. It's like to participate in the